ہر ٹرک جو ہم سڑک پر ڈالتے ہیں جو ڈیزل ٹرک کی جگہ لے لیتا ہے ایک بہت بڑا لیور ہے۔ اسی لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پائیدار توانائی اور نقل و حمل کے مشن کو حاصل کرنے کے لیے اہم ہے۔ ٹویوٹا ایک اہم اقدام کے ساتھ ہلچل مچا رہا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے۔ وہ ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیاں اپنا کر آٹوموٹیو دنیا کو ہلا کر رکھ رہے ہیں۔ الیکٹرک کاروں سے اسپاٹ لائٹ چرانے کا ارادہ۔ ایک حیران کن موڑ میں انہوں نے بالکل نئے ماڈل کے منصوبوں کا انکشاف کیا ہے جو الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ ہائیڈروجن کیوں؟ یہ انتہائی صاف ہے، تیزی سے دوبارہ بھرتی ہے، زیادہ مائلج کی اجازت دیتی ہے اور بیٹری سے چلنے والی باقاعدہ گاڑیوں کے مقابلے سیارے کے لیے زیادہ مہربان ہے۔ ٹویوٹا کی نئی ہائیڈروجن کاروں نے پوری آٹو انڈسٹری کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ تجسس ہے کہ ہر کوئی کس چیز کے بارے میں اتنا پرجوش ہے۔ دیکھتے رہو اور ارے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں تاکہ سب سے پہلے تمام زبردست ٹیک خبر سنیں۔ ہائیڈروجن کاروں کے ساتھ ٹویوٹا کا سفر 1992 میں شروع ہوا جب انہوں نے اسے مستقبل کو طاقت دینے کے لیے ایک ٹھنڈا ماحول دوست طریقہ کے طور پر دیکھا۔ یہ صرف ایک قلیل مدتی جھڑپ نہیں تھی، وہ اس میں طویل فاصلے تک رہنا چاہتے تھے، گندے جیواشم ایندھن کو کھودنے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا خواب دیکھتے تھے۔ 1996 میں انہیں اپنی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی کار کے آغاز کے ساتھ بڑی کامیابی ملی۔ ریو 4 کلاسک ریو 4 پر بنائے گئے اس چھوٹے سے علمبردر نے ثابت کیا کہ ہائیڈروجن دراصل ایک کار کو طاقت دے سکتا ہے اور اسے اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کی تعمیر آسان نہیں تھی۔ ٹویوٹا انجینئرز کو کئی مشکل کاموں سے نمٹنا پڑا، بشمول ایندھن کے خلیات کو ڈیزائن کرنا، یہ معلوم کرنا کہ ہائیڈروجن کو محفوظ طریقے سے کیسے ذخیرہ کیا جائے اور بقا اجزاء کو کام کرنا۔ RAV4FCV ان کا ایپیفینی کا لمحہ تھا، دنیا کو دکھانا کہ صفر اخراج ڈرائیونگ صرف ایک پائپ خواب نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں کام کر سکتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں ٹویوٹا انجینئرز کو کئی مشکل چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹویوٹا نے ہائیڈروجن ٹیکنالوجی کو مکمل کرنے میں مسلسل دل اور پیسہ ڈالا۔ انہوں نے کام کو تیز کرنے کے لیے روشن سائنسدانوں اور سرکاری اہلکاروں کے ساتھ تعاون کیا۔ انہوں نے اپنے ایندھن کے خلیوں کو چھوٹی فرتیلا کاروں سے لے کر بڑی تجارتی گاڑیوں تک ہر چیز میں آزمایا۔ پھر 2002 میں انہوں نے ٹویوٹا لانچ کیا، فیول سیل اور ہابٹ ٹیکنالوجی کا ایک ہوشیار امتزاج جس نے ہمیں ایکو ڈرائیونگ کے مستقبل کا ذائقہ دیا۔ اگلے 10 سالوں کے لیے ٹویوٹا نے اپنے ہائیڈروجن سے چلنے والے پروٹوٹائپس کو مسلسل بہتر کیا، دنیا بھر میں دلچسپ مظاہروں اور ٹیسٹوں میں ان کی نمائش کی۔ اس نے مقامی حکومتوں اور گروپوں کے ساتھ مل کر ان کاروں کو عام بنانے کے لیے درکار ہائیڈروجن اسٹیشنوں کی تعمیر شروع کی۔ اس تمام محنت کا صلہ 2014 میں ملا جب ٹویوٹا نے ریلیز کی، جو کہ ایک شاندار ہائیڈروجن کار تھی جس نے سب کو حیران کر دیا اور مارکیٹ میں آ گئی۔ یہاں تک کہ گیس اسٹیشنوں کی کمی اور بیٹری سے چلنے والی کاروں کے سخت مقابلے جیسی رکاوٹوں کے باوجود ٹویوٹا نے کبھی بھی ہائیڈروجن کو ترک نہیں کیا۔ وہ اب بھی پیک کی قیادت کر رہے ہیں، اسے استعمال کرنے کے نئے طریقے ایجاد کر کے، جیسے کہ بڑے ٹرکوں اور بسوں میں، اور دنیا بھر میں ہائیڈروجن فیول نیٹ ورکس کو پھیلانے کے لیے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ٹویوٹا ہائیڈروجن پر شرط لگا رہا ہے، کیونکہ اسے واقعی یقین ہے کہ یہ دنیا کی صاف توانائی اور سب سفر کی طرف منتقلی میں کلیدی کھلاڑی ہے۔ تو کیا ہائیڈروجن واقعی ایندھن کا کام کرتی ہے اور ان ناقابل یقین گاڑیوں کے لیے آگے کیا ہے؟ آئیے اندر غوطہ لگائیں۔ ٹویوٹا میرائی سے ملو۔ اس کے نام کا مطلب جاپانی زبان میں او مستقبل ہے، اور یہ درمیانے سائز کی پہلی ہائیڈروجن کار ہے جسے آپ خرید سکتے ہیں۔ اس نے 2014 میں لاس اینجلس آٹو شو میں ڈیبیو کیا، جس میں ٹویوٹا کی ماحولیاتی ڈرائیونگ اور جدید کلین ٹیکنالوجی کے عزم کو ظاہر کیا گیا۔ میرائی کا چیکنا ڈیزائن اور ذہین ٹیکنالوجی راست اس کے آباء و اجداد سے حاصل کی گئی ہے۔ ٹویوٹا اور کانسیپٹ کاروں کی طرح 2011 میں ٹوکیو آٹو شو میں نمودار ہوئی، جس نے ہمیں ٹویوٹا کے ہائیڈروجن خوابوں کا پہلا ذائقہ دیا، جبکہ اسی شو میں 2013 کے تصور نے اس ویژن کو مزید نکھار دیا۔ ٹویوٹا کے تصور کو ایک شاندار ہلکی نیلی سیڈان کے طور پر پیش کیا گیا، اپنے ماحول دوست اسناد کو ظاہر کرنے کے لیے پانی کی بوند کی طرح۔ پانی کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہائیڈروجن سے چلنے والی کاروں سے نکلتا ہے۔ کوئی ناخوشگوار دھواں نہیں،
सिर्फ खालिस H2O मीराई इस तस्वुर से पैदा हुआ इको ड्राइविंग के एक चमकते हुए सितारे की तरह है कि सामने एक बड़ी गर्ल थी और ठंडी हुआ और ऑक्सीजन को खींचने के लिए इसके ईंधन के खलियात को अच्छी हालत में रखा गया था, और ये एक टोयोटा कैमरी का साइज था जो रोजाना ड्राइवरों के लिए मानूस और आरामदेह था, लेकिन ये 700 के करीब टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। किलोमीटर ये पूरे टैंक पर 430 मील है, जो इसे अंदर ईंधन की ज्यादा खपत वाली कारों का हकीकी मद्दे मुकाबिल बनाता है। तस्वुर में एक सुपर चार्ज फ्यूल सेल सिस्टम है जो टोयोटा के पिछले वर्जन से दुगना ताकतवर है। इस अपग्रेड ने 100 किलोवाट से ज्यादा बिजली पैदा की। एक ही वक्त में ईंधन सेल साइज में कम कर दिया गया था। काफी चालाकी के साथ टोयोटा ने अपनी हल्के वजन के फ्यूल सेल अरी को शामिल किया और कारकर्दगी और ईंधन की मईशत को बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए गए बॉडी के नीचे 2 हाइड्रोजन टैंक रखे का तस्वुर 4 अफराद को आसानी से बैठ सकता है। खानदानों तन्हा मुसाफिरों के लिए बेहतरीन और उससे भी बेहतर। इसकी कीमत 2008 से टोयोटा के मॉडल से 95% कम होने की तवक्को थी। इस्तेताअत के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी। जब मारा ने 2015 में मार्केट में कदम रखा तो टोयोटा ने अपनी कुछ साबित शुदा हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज शामिल की, जैसे कि इसकी हाइब्रिड रेंज से इलेक्ट्रिक मोटर और पावर कंट्रोल यूनिट इसे काबिल एतमाद, मुअस्सर और मुकम्मल गेम चेंजर बनाकर टोयोटा का तस्वुर टेक्नोलॉजी का एक शानदार इम्तिजाज था, जिसने किसी भी किस्म की ड्राइविंग बशमूल सुस्त रफ्तार शहर की ट्रैफिक में ख्वाब की तरह काम किया। इसने एक आम इलेक्ट्रिक कार की तरह बर्ताव किया। इसने बैटरी से ताकत हासिल की, जिसने सुस्त होने पर दोबारा पैदा होने वाली बेकिंग के जरिए तवानाई में इजाफा किया। लेकिन जब आपको फौरी सूरत इजाफी ताकत की जरूरत होती है तो हाइड्रोजन फ्यूल सील्स लात मारेंगे और बारास्त इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देंगे। बैटरी और फ्यूल सील सुपर हीरोज की तरह मिलकर काम करेंगे उनकी ताकत को यकजा करने के लिए। जून 2014 तक टोयोटा ने को मुकम्मल कर लिया, इसे हकीकी दुनिया के लिए तैयार किया। जापान में कीमतों की तफसीलात जारी करना और अप्रैल 2015 से पहले लॉन्च की तारीख मुकर्रर करना। उन्होंने इन जगहों से शुरुआत की जो हाइड्रोजन स्टेशन बना रहे थे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उन कारों को ईंधन की मुस्तकिल फराहमी हो। ये सारी मेहनत मीराई की तख्लीक का बाइस बनी। हाइड्रोजन सितारे की पहली नस्ल, जिसका कोड नाम है, ये दिसंबर 2014 में मंजर आम पर आया और 2020 तक चलता रहा। टोयोटा की जदीद तरीन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को हाइब्रिड ट्रिकुरी के साथ मिलाते हुए को सिंगल स्पीड गियर बॉक्स और 6 किलोवाट एक हाइड्रोमीटर की सलाहियत के साथ एक छोटा लेकिन कारआमद बैटरी था। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जांच के तहत ये 502 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। ये एक मुकम्मल टैंक पर 312 मील है, काफी मुतासिर कुन। इसके दिल में टोयोटा फ्यूल सेल सिस्टम था। ईंधन के खलियात और हाइब्रिड जादू का एक होशियार इम्तिजाज, एक हसब ज़रूरत ईंधन सेल किट के साथ एक बोसट कन्वर्टर और हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक ये इंतहाई मुअस्सिर तरीके से काम करता है और कोई कार्बन डाइऑक्साइड कोई नुकसानदेह मादा खारिज नहीं करता है, सिर्फ खालिस पानी मीराई का होशियार निज़ाम इसे Z किलोमीटर की रफ्तार को तेज करने की इजाज़त देता है। 60 मील फी घंटा सिर्फ 9 सेकंड में काफ़ी तेज और मजीद बे हाइड्रोजन से भरने में सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं। बैटरी कार को चार्ज करने से कहीं ज्यादा तेज। इजाफी पानी के बुखारात से छुटकारा हासिल करने के लिए इसमें एक तफरीही H2O बटन भी है। सिर्फ एक चीज जिससे ये बाहर निकलता है वो है फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इख्तिलात। मीराई फ्यूल सेल एक हकीकी स्टार है। ये सतहों पर ऑक्सीजन को मुकम्मल तौर पर तकसीम करने के लिए ठंडे 3D गट डिजाइन का इस्तेमाल करता है। ये चाल इसे बिजली पैदा करने में इंतहाई मुअस्सर बनाती है। एक ही वक्त में ये छोटा लेकिन ताकतवर है। मीराई हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक केलों की तरह सख्त हैं। वो 3 परतों की तामीर और कार्बन फाइबर से मजबूत प्लास्टिक के साथ बनाए गए हैं और UBE इंडस्ट्रीज से नालान इसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो टोयोटा के हाइब्रिड इल्म से मुस्तार ली गई है, 130 किलोवाट पावर और 335 न्यूटन मीटर टारुक पंप करती है। कैमरी हाइब्रिड मॉडल की तरह निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी के साथ जोड़ा बनाया गया है। हिफाजत भी बहुत अहम है। टोयोटा ने अपने हिगाशी फ्यूजी टेक्निकल सेंटर में पागलों की तरह मीराई का क्रैश तजर्बा किया। कार्बन फाइबर मवाद को इसके जिस्म में असर तवानाई को जज्ब करने और ज़ाय करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे अंदर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। हाइड्रोजन सेंसर भी पूरी कार में मौजूद हैं
ताकि लीक का पता लगाया जा सके और अगर जरूरी हो तो टैंकों को फौरी तौर पर बंद किया जा सके। टैंक केबन के बाहर वाक़े हैं, लिहाजा कोई भी फरार होने वाला हाइड्रोजन बेज़रर तरीके से बह जाता है। पूरा ढांचा कार के मुसाफिरों और अहम हिस्सों दोनों की हिफाजत के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इंतजार करो, और भी है। पहली मीराई सिर्फ शुरुआत थी। इसकी कामयाबी ने दूसरी नस्ल के मीराई के लिए राह हमवार की, और टोयोटा अभी शुरू हो रहा था। इस हाइड्रोजन एडवेंचर के साथ टोयोटा ने बार उठाया। दूसरी नस्ल की मीराई अक्टूबर 2019 में मंजर आम पर आई। मॉडल कोड JP20 के साथ ये दिसंबर 2020 में प्रोडक्शन में दाखिल हुई। टोयोटा के नए खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर बनाया गया इस मीराई में पीछे का इंजन वाला रेयर व्हील ड्राइव सिस्टम है। इससे गाड़ी चलाने को तेज और ज्यादा लुत्फ आता है। ये नया लेआउट गाड़ी के वजन को बेहतर तौर पर मुतवाजिन करता है और अंदरूनी जगह ज्यादा फराहम करता है। ज्यादा आरामदेह सवारी के लिए हुड के नीचे बेहतर ईंधन सेल ड्राइव सिस्टम 182 हार्स पावर और 300 न्यूटन मीटर टारुक पैदा करता है। असल मीराई से नुमायां तौर पर ज्यादा ताकत, इसका मतलब है तेज रफ्तार आगाज और एक जानदार ड्राइविंग का तजर्बा। ये सब माहौल दोस्त आबो हवा को बरकरार रखते हुए इलेक्ट्रिक मोटर, सिंगल स्पीड गियर बॉक्स और एक छोटी लिथियम आयन बैटरी के साथ काम करती है, जिसमें 47 से ज्यादा रेंज होती है। हाइड्रोजन के एक टैंक पर किलोमीटर 42 मील 3 टैंकों के साथ, जिसमें कल 141 लीटर है। अब फुल अप्स के दरमियान ज्यादा देर तक गाड़ी चला सकते हैं। हर इस शख्स के लिए जो माहौल दोस्त गाड़ी चिल्लाना चाहता है, कोई परेशानी नहीं। मीराई का चिकना जदीद डिजाइन सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इसे एरोडायनामिक्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल को जहन में रखते हुए बनाया गया था। दाखला एक पुरतयुश रहने वाले कमरे से मिलता जुलता है, जदीद टेक्नोलॉजी और आरामदेह खुसूसियात से लैस। मार्च 2023 से टोयोटा ने आपको नाकाबिल यकीन हद तक इस्तेमाल में आसान इंटरफेस से मुंसलिक रखने के लिए एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल किया है। इसमें टोयोटा का टीम मैट लेवल 2 ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी है, जो मखसूस सड़कों पर हैंड्स फ्री ड्राइविंग और यहां तक के ज़हीन मदद के साथ पार्किंग की इजाजत देता है। क्या ड्राइविंग ज्यादा महफूज और कम दबाव है? हिफाजत, मीराई के पास ये सब कुछ कंट्रोल में है। इसने सितंबर 2021 में यूरो NCAP से 5 स्टार रेटिंग हासिल की। सड़कों पर आने के बाद से ये एक हिट रहा है। नवंबर 2022 तक इसने दुनिया भर में 21,475 यूनिट्स फरोख्त किए हैं। ये कार टोयोटा के हाइड्रोजन ख्वाब का सबूत है। ये बड़ा, सजीला, ताकतवर और सैयारे के मुवाफिक फराहम करता है। सब एक साथ। अमेरिका मीराई से मोहब्बत करता है, 11,368 यूनिट्स हासिल कर रहा है। जापान 7,435 यूनिट्स के साथ करीब से पीछे है, और दुनिया भर के दीगर मकामात मजीद 2,622 का इजाफा कर रहे हैं। बिलाशुबा ये तादाद बड़ी नहीं लगती है, लेकिन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी अब भी एक नौजवान कुत्ते का बच्चा है। मकबूलियत हासिल करने में कुछ वक्त लगेगा। फिर भी मीराई की कामयाबी ने टोयोटा के नीचे आग लगा दी है। हाइड्रोजन कार गेम को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए टोयोटा मीराई पर नहीं रुक रही है। उनके पास पाइप लाइन में 2 बिल्कुल नई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उनकी लाइन अप को हिलाने के लिए मजीद बे वो खुद मीराई को एक तब्दीली दे रहे हैं। मद्दाहों को मौजूदा वर्जन के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। केबन और छोटा ट्रंक कितना तंग है, तो टोयोटा इसे ठीक कर रहा है। एक कमरे के साथ ज्यादा अमली दाखला, जो अब भी मीराई के ठंडे अंदाज और जानदार कारकर्दगी को बरकरार रखता है। ये शानदारीत जाहिर करती है कि टोयोटा अपने ड्राइवरों की बात सुनना और ड्राइविंग के तजुर्बे को मजीद बेहतर बनाना चाहती है। दिलचस्प नई खुसूसियात में से एक टोयोटा मीरी स्पोर्ट है। बोल्ट के साथ एक सूप अप वर्जन। स्पोर्ट वॉब एक नए बम्पर, ब्लैक सराउंड और रियर डिफ्यूजर के साथ एक खतरनाक शक्ल रखता है, जो न सिर्फ तेज नजर आता है, ये गाड़ी को तेज रफ्तारी से सड़क पर चिपकने में मदद करता है। टोयोटा सस्पेंशन और ड्राइव ट्रेन को बेहतर बनाता है और इसे तेज तर हैंडलिंग और ज्यादा मुतहर्रिक एहसास देता है जब आप गैस को दबाते हैं या इसे तेज रफ्तारी के साथ एक कोने को तेज रफ्तारी से शुरू करते हैं। एक सनसनी के साथ गाड़ी चिल्लाना, जो कि माहौल के शायकीन से लेकर तेज रफ्तारी के शौकीनों तक को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा। लेकिन इंतजार करें, टोयोटा क्राउन एलागेंट से मिले
ایک 4 دروازوں والی سیڈان جس میں فرنٹ انجن اور ریئر وہیل ڈرائیو ہے، یہ ایک خواب کی طرح چلتی ہے۔ یہ خوبصورت سواری ہائیڈروجن کی طاقت کے ساتھ ایک ہموار سواری کو یکجا کرتی ہے۔ یہ ثابت کرنا کہ ٹویوٹا اپنے انداز اور اعتماد کے ساتھ مستقبل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹویوٹا کراؤن FCEV 2 ناقابل یقین ورژن میں دستیاب ہے، ایک ہائبرڈ اور ایک ہائیڈروجن فیول سیل ورژن۔ فیول سیل ماڈل وہی ہائی ٹیک گیجٹس لیتا ہے جیسا کہ دوسری نسل کا میرائی 3 ہائی پریشر ہائیڈروجن ٹینکوں سمیت یہ ناقابل یقین 820 کلومیٹر کا سفر کرنے کی اجازت دیتا ہے، ایک ہی فل پر تقریباً 509 میل۔ اس سے بھی بہتر ایندھن بھرنے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ ہائیڈروجن کاروں کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنا۔ یہ الیکٹرک موٹر سے جڑنے کے لیے لیتھیم آئن بیٹری استعمال کرتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہائیڈروجن اور بقا طاقت کے درمیان ڈرائیونگ کے تجربے کے لیے سوئچ کرتا ہے، جو طاقتور اور آسان دونوں ہے۔ اندر کراؤن کیبن خالص لگژری ہے۔ بورڈ میں موجود ہر ایک کے لیے پریمیم مواد اور ایک انتہائی آرام دہ ترتیب کے بارے میں سوچیں۔ یہ ایک فینسی انفوٹینمنٹ سسٹم کے ساتھ آتا ہے، استعمال میں آسان اور ہر سفر کو ناقابل یقین بنانے کے لیے قاتل آڈیو اور کنیکٹیویٹی کے اختیارات۔ سیفٹی بھی ایک اہم تشویش ہے۔ آپ کو محفوظ رکھنے اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے ذہین ڈرائیور امدادی خصوصیات کے ساتھ کراؤن سیڈان نے پہلی بار جولائی 2022 میں اپنا پری پروڈکشن سٹائل دکھایا۔ یہ 2 نومبر کو جاپانی مارکیٹ میں آیا 2023 اور اس نے 13 نومبر کو ہاٹ کیکس کی طرح فروخت ہونا شروع کر دی۔ 600 یونٹس ماہانہ کا ہدف ٹویوٹا کراؤن کو اپنے پاس نہیں رکھ رہا ہے، یہ چین کی طرف بھی جا رہا ہے۔ 2020 میں چین سے 14 جنریشن کے کراؤن کو واپس لینے کے بعد ٹویوٹا نے نومبر 2020 میں اپنی شاندار واپسی کا اعلان کیا۔ دسمبر 2022 میں گوانگزو آٹو شو میں ایک ورکنگ ہائیڈروجن سے چلنے والے پروٹوٹائپ نے 24 گھنٹے کی فوجی انڈرنس ریس کے دوران فوجی سپیڈوے پر شو کو چرایا۔ 2 خوبصورت ورژن پریمیم اور ایک سٹریم یہ لگژری کار کے شائقین کو خوش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس بڑی مارکیٹ میں ٹویوٹا کراؤن چین میں زبردست دھوم مچا رہا ہے۔ یہ دکھا رہا ہے کہ لوگ ہائیڈروجن سے چلنے والی کاروں کو کتنا پسند کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں الیکٹرک گاڑیاں ایک بار ایکو ڈرائیونگ منظر پر راج کرتی تھیں، کراؤن کی مقبولیت ثابت کرتی ہے کہ لوگ بڑے پیمانے پر ہائیڈروجن ٹیکنالوجی کو گرم کرنا شروع کر رہے ہیں۔ خریدار اس کی تیز رفتار ایندھن بھرنے کے عادی ہے، جس میں صرف چند منٹ لگتے ہیں اور بہت سی الیکٹرک گاڑیوں کے مقابلے ایک ہی ٹینک پر زیادہ دیر تک گاڑی چلانے کی اجازت دیتی ہے۔ چین کی بے رحم کار مارکیٹ میں ولی عہد نے شو چرا لیا۔ وہاں کے لوگ اس کی ناقابل یقین کارکردگی کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور عیش و آرام کا بہترین امتزاج اور سیارے کے موافق ماحول، یہ خاص طور پر بڑے شہروں میں مقبول ہے جہاں ہائیڈروجن سٹیشن بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ایندھن بھرنے اور سڑک کو مارنے کو آسان بناتا ہے۔ چینی ڈرائیور اسے ایک زبردست انتخاب سمجھتے ہیں، ایک سجیلا انتخاب جو ایکو کریڈٹ پر کم نہیں کرتا۔ جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ لوگ ہائیڈروجن کے فوائد سے واقف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہ یہ ماحول دوست اور انتہائی مؤثر ہے، کراؤن جیسی کاریں صرف زیادہ مشہور ہوں گی۔ مزید بے بیٹری کی کمی، پیچیدہ سپلائی چینز اور لیتھیم کان کنی کے گندے پہلو کے بارے میں تشویش۔ الیکٹرک گاڑیوں کے معاملے میں ہائیڈروجن ایک تازہ کی طرح لگتا ہے، ایک دلچسپ آپشن۔ ایک بڑھتی ہوئی گونج ہے کہ ہائیڈروجن کاریں الیکٹرک گاڑیوں کا حقیقی مد مقابل ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں تیز رکے اور طویل سفر کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ آئیے اس کا سامنا کریں۔ منٹوں میں ایندھن۔ الیکٹرک گاڑی کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کسی بھی دن چارج کرنا، ان لوگوں کے لیے جو سمجھوتا کیے بغیر سہولت چاہتے ہیں۔ جب بات الیکٹرک گاڑیوں کی ہو تو ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیاں جیسے کراؤن مستقبل کی طرح لگنے لگتی ہے، اور دنیا نوٹس لے رہی ہے۔ ٹویوٹا مکمل طور پر ہائیڈروجن پر شرط لگا رہا ہے، اور وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے، وہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ہائیڈروجن سے چلنے والی کار لائن اپ کو بڑھا رہے ہیں اور مزید گیس اسٹیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہائیڈروجن گاڑیوں کو استعمال میں آسان اور روزمرہ کے ڈرائیوروں کے لیے زیادہ پرکشش بناتا ہے۔
लोग पुरजोश हैं और हुकूमतें हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की हिमायत कर रही हैं। ऐसा लगता है कि ये कारें जल्द ही हर जगह हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ बारास्त मुकाबला। पहली जगह के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, लेकिन सैयारे का क्या होगा? आइए करीब से देखें। हाइड्रोजन कारें बमुकाबला इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ग्रीन चैंपियन कौन सा है? क्योंकि हम साफ तवानाई के हक में जीवाश्म ईंधन को खोद रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां दोनों हमारे कार्बन मेस को कम करने में हीरो हैं, लेकिन उनकी अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं कि क्या चीज उन्हें टुक करती है। माहौल हिफाजत और उन्हें काम करने के लिए हमें क्या जरूरत है के बारे में सोचें। ये सब के बारे में क्या है? दोनों तवानाई की हिफाजत और कार्बन के इखराज को कम करने के बारे में है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हमारी तेल की आदत को कम कर सकते हैं और हवा को साफ कर सकते हैं, खास तौर पर अगर हम उन्हें काबिल तजदीद तवानाई के जराए जैसे शमसी या हवा से बिजली फराहम करें। ये सिर्फ एक महदूद ईंधन को दूसरे के लिए तब्दील करने के लिए नहीं है, ये एक गेम बदलने वाली तवानाई का खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए दोनों ही में कार्बन की ताकत नहीं रखते। टेल पाइप का नतीजा साफ सुथरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन एक कैच है कि वो कितने सब्ज हैं इस बात पर मुनहसिर है कि हम उनके रस को कैसे गंदा बिजली बनाते हैं या फोसिल फ्यूल से हाइड्रोजन इतना साफ नहीं करते। काबिल तजदीद जराए। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और में मुंतकली की बात कर रहे हैं। ये केक का कोई टुकड़ा नहीं है। हमें के लिए एव्स और हाइड्रोजन डिस्पेंसर के लिए चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है, और उसके लिए हुकूमतों के कारोबारों और आम लोगों के दरमियान बड़ी रकम की स्मार्ट मंसूबाबंदी और ताउन की जरूरत है। हैरत अंगेज हैं, लेकिन उनके कुछ तरक्याती मसाइल हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है, इससे पहले कि हर कोई उन्हें एव्स के लिए चिल्लाना शुरू करे। रिचार्ज एबल बैटरी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाता है। सोचें कि के लिए तवील सफर और तेज स्टॉप आइडिया ये है कि हाइड्रोजन को सस्ता बनाया जाए और मजीद फ्यूल स्टेशंस बनाए जाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ तेज रफ्तार गाड़ियां चलाई जाएं। पैसे के लिए बेहतर कीमत, जबकि लंबी रेंज और तेज रिफ्यूलिंग के साथ चमकते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद करना ज्यादा मुश्किल और महंगा है। कि वो कितने सब्ज हैं, ये ताकत के मंबा पर मुनहसिर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां इको सुपरस्टार हो सकती हैं जब हुआ अशमसी जैसी साफ तवानाई से चार्ज किया जाता है। अक्सर कुदरती गैस से तैयार करदा हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है। ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए काबिल तजदीद तवानाई और सिफर के इखराज से पैदा होने वाली सब्ज हाइड्रोजन ख्वाब का हदफ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस वक्त मकबूलियत का मुकाबला जीत रही हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी और चार्जिंग पॉइंट्स की बहुतात की बदौलत। वो यहाँ हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उरूज रुक नहीं सकता। बड़े कार बांड्स बिजली पर शर्त लगा रहे हैं और मार्केट फट रही है। पार्टी को जारी रखने के लिए हमें एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क की जरूरत है, जिसका मतलब है काबिल तजदीद तवानाई के लिए बड़े मंसूबे और बड़ी रकम। हर जगह पावर गड और चार्जर्स। कोई भी पसीना बहाना नहीं चाहता। उनकी बैटरी खत्म हो रही है, तो एक ज़बरदस्त सीट अप उन परेशानियों को खत्म कर देता है। बैटरियां खुफिया चटनी है और वो तेजी से तरक्की कर रहे हैं। लिथियम आयन और नई सॉलिड स्टेट बैटरियां। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मजीद और चार्जिंग के औकात को कम करना हर किसी के लिए ग्रीन एनर्जी स्टोरेज के लिए तैयार होने के लिए एक मुकम्मल कामयाबी बनाती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बिजली की रवानी को हमवार रखने के लिए बहुत अहम है, यहाँ तक कि जब हर कोई एक ही वक्त में चार्ज करता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक जाते हैं तो ये इंतहाई अहम बन जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पावर से मुंसलिक करने के लिए एक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। छोटे पावर बैंक। जब डिमांड कम हो तो शहरों को सरसब्ज बनाना और तवानाई के निज़ाम को मजबूत बनाना। पायदार इलेक्ट्रिक व्हीकल सीट अब सिर्फ चार्जर्स के बारे में नहीं है, उन्हें अपनी कारों को आसानी से चलाने के लिए मरम्मत की दुकानों और खिदमात की जरूरत होती है। ये एक माहौल दोस्त माहौल बनाने के बारे में है जो बिजली से ड्राइविंग को आसान बनाता है। और ये हैरत अंगेज हाइड्रोजन कारों के अपने बेहतरीन फवाइद हैं। वो मिनटों में ईंधन भरती हैं, घंटों में नहीं। वो पेट्रोल कार को भरने की तरह है। लंबे सफर के लिए बेहतरीन अमसरूफ बेड़े के लिए मजीद बे हाईवे पर 500 से ज्यादा हाइड्रोजन गाड़ियों के लिए एक तवील फासले पर गाड़ियों के लिए मौजू है। ट्रिप्स खत्म होने की कोई फिक्र नहीं। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों कारें एग्जॉस्ट आलूदगी को बाईपास करती हैं, लेकिन वसाइल के इस्तेमाल के मामले में हाइड्रोजन आगे हो सकती है अगर हम इसे साफ जराए से हासिल करें तो।
लंबी रेंज और सैयारे के मुवाफिक। हाइड्रोजन में संजीदा एप्लीकेशंस हैं। हाइड्रोजन कारें चमक रही हैं जब आप उनके तवानाई के मंबा को देखते हैं। वो हाइड्रोजन पर चल सकते हैं। वह अशमसी तवानाई से बनाया गया है। वो चीजों को इंतहाई साफ रखते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बकस उन्हें बड़ी लिथियम बैटरियों की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब सैयारे के लिए कम कानकनी और गंदगी है। हाइड्रोजन इजाफी काबिल तजदीद तवानाई को जखीरा करने में भी मदद करता है। शमसी और हवा की तवानाई के उतार चढ़ाव को हमवार करना, और ये तेजी से फैल सकता है। बिल्कुल इसी जगह हम सब्ज हाइड्रोजन पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। भारी ट्रकों आ बसों जैसी बड़ी नौकरियों के लिए हाइड्रोजन चैंपियन है। इसकी आला तवानाई की कसाफत बैटरियों को धड़कती है। चीजों को कम किए बगैर तवील सफर के लिए इसे मिसाली बनाना। लेकिन सब्ज होना इन लोगों पर मुनहसिर है जो इसे पसंद करते हैं। आसान ईंधन भरने, सस्ती कारें और बात को फैलाना, वो सब को शामिल करने की किलीद है। हाइड्रोजन हमें क्लीनर की तरफ धकेल रही है। होशियार ड्राइविंग बहुत अच्छा, ठीक है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और स्मार्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी हमारे अर्द गिर्द जाने के तरीके को तब्दील करने की किलीद है। सब्ज हाइड्रोजन यहां बड़ी चीज है। यह हुआ अशमसी तवानाई जैसी साफ चीजों से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए तकसीम करने के लिए बनाया गया है। कोई गंदा इखराज नहीं, सिर्फ साफ सैयारे के मुवाफिक तवानाई। पुराने हाइड्रोजन के बकस ये जीवाश्म ईंधन से बनाया गया है जो कोयला निकालता है। सब्ज हाइड्रोजन हर चीज को साफ रखता है। ये बड़ी फैक्ट्रियों जैसी मुश्किल से बिजली बनाने वाली चीजों के लिए मिसाली है। हवाई जहाज और बहरी जहाज इखराज को कम करते हैं जहां बैटरियां नहीं कर सकती। उसके अलावा वो धूप और हवा के दिनों से इजाफी काबिल तजदीद तवानाई जखीरा कर सकते हैं, और जब हमें जरूरत हो इसे तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। वो लाइट्स को ऑन रखते हैं और कुरा अर्ज को खुश रखने वाला ग्रीन हाइड्रोजन हमारी तवानाई के गढ़ को मजबूत करता है और कार्बन के इखराज को कम करता है। न सिर्फ कारों के लिए बल्कि पूरे बोर्ड में ये बड़ी चीजों के लिए गेम चेंजर है, जैसे ट्रकों के लिए, ट्रेनें और यहां तक कि हवाई जहाज जहां भारी बैटरियां आसानी से काम नहीं करती हैं। हाइड्रोजन ईंधन के खलियात हल्के होते हैं, वो बहुत ज्यादा तवानाई पैक करते हैं। वो जल्दी से ईंधन भरते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। उन हैवी लिफ्टर्स के लिए बिल्कुल दुरुस्त हाइड्रोजन के इस्तेमाल की बदौलत हम नक्लो हमल के कार्बन फुटप्रिंट को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन स्टील और केमिकल जैसी सनतों में कोयले जैसे गंदे ईंधन की जगह ले सकता है। उन गंदे शुबों को भी साफ कर सकता है। बहुत सारे सूरज अहवा वाले ममालिक हाइड्रोजन सुपरस्टार भी बन सकते हैं। मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइड्रोजन कारें दोनों ही सरसब्ज मुस्तकबिल की किलीद हैं। बेहतर बैटरियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देंगी, जबकि ज्यादा चार्जिंग और ईंधन भरने वाले मकामात दोनों को चलते रहेंगे। जैसे जैसे लोग सब्ज फवाइद और चलाने की कम लागत को देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बोर्ड पर जाएंगे, खास तौर पर हुकूमत की हिमायत याफ्ता गैजेट्स के साथ। पेशकश को मजीद पुरकशिश बनाना। अभी के लिए इतना ही है। देखने के लिए शुक्रिया किया, अपने लुत्फ उठाया। पसंद करें, एक तबसरा शामिल करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपसे महरूम ना हो।